Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to discuss with you a very interesting topic and it is convex sets. I'm discussing this topic primarily for the students who are pursuing BA Economics Honors Semester 1 और Semester 2. लेकिन जो बच्चे इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 3 में माइक्रो पढ़ते हैं उनको भी इस टॉपिक की नीड है. All those students who are preparing for MA Economics entrance, they also need to understand this topic. If someone is pursuing MA Economics, कोई अगर MA Economics कर रहा है from any university, he or she should also know what the meaning of convex sets. So quite a large set of audience for this topic. Now, what is convex set? I will explain you the meaning of the convex set. I will explain you how to prove or disprove whether a set is convex or non-convex graphically. Then I will teach you the mathematical definition and I will show you how we can prove whether a given equation, whether a given condition or inequality rather, we will get inequality, whether a given inequality represents a convex set or a non-convex set. ये सब हम करने वाले हैं. जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको. जैसे एक इनइक्वालिटी है हमारे पास s इज इक्वल टू सेट दिया s इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट ax plus by is less than equal to m. We have another set s is equal to xy such that ax square plus by square less than equal to say k square. We have s is equal to xy such that x into y is greater than equal to k. Right, now these kind of questions I will solve algebraically. I will prove how to show whether this set is convex or non-convex. What I have seen by teaching in the class that most of the students, when I ask them the question, do you know what is convex set? Then they say, yes sir, we have studied convex set, we understand the meaning. We can prove graphically as well. If somebody is very weak in curve sketching, then obviously he or she will face the issues, but mostly when students are studying economics, they know graphs. I'm believing this. अगर आप नहीं जानते हो पहले ग्राफ के वीडियोस आपको पढ़ने पड़ेंगे सारे. अच्छा, आप कर्व स्केचिंग मोस्टली जानते हैं, तो अगर आप कर्व स्केचिंग जानते हैं तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं हाँ सर हमको कॉन्वेक्स सेट पता है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन दे दिया, इसको आप प्रूव कीजिए अलजेब्रिकली, क्या ये कॉन्वेक्स सेट है, वहाँ बच्चे पेन रख देते हैं, सॉरी सर हमसे ना हो पाएगा, ऐसा बोल देते हैं सर ये नहीं होगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना पड़ेगा कि हम ऐसे क्वेश्चंस को अलजेब्रिकली कैसे प्रूव करेंगे. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले आपको मीनिंग समझाने वाला हूं, फिर ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, फिर मैथमेटिकली आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर अलजेब्रिक अप्रोच करूंगा. ठीक है, ये सारे काम आज की क्लास में करने वाले हैं. तो मीनिंग समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा इसकी डेफिनेशन क्या है सर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट? A set is said to be a convex set if a line segment joining any 2 points of the set lie entirely within the set. This is very important, entirely. If I have taken a set, I have a set, I have to select any 2 points which are lying whether in the set or on the set. On मतलब boundary पे भी हो सकते हैं. Then what I do, I connect them with a straight line, that is line segment. If that line segment is lying entirely within the set, entirely, it is not going out the set for a very small portion, then we can say it is a convex set. I'm saying it is not going out. समझ गए? The line segment should not go out any time out of the set. It should lie entirely within the set between those 2 points. Then it is a convex set. Now a question. सर अगर मैं कोई एक लाइन ऐसी ढूंढ सकता हूं जो पूरी तरह से सेट के अंदर लाई करती है, तो क्या वो कॉन्वेक्स होगा? नो. मुझे वो लाइन नहीं ढूंढनी जो लाई करती है,
मुझे वो लाइन ढूंढनी है जो बाहर जा सकती है. इफ आई कैन फाइंड वन एक्सेप्शन देन इट इज नॉट अ रूल. मुझे एक्सेप्शन ढूंढना है. और अगर लाख कोशिश करके भाई साहब, लाख जतन करके, लाख प्रयास करके आपको ऐसी कोई लाइन नहीं मिल रही और आपको भरोसे आप सही कर रहे हैं, तो वो कॉन्वेक्स सेट है. देखते हैं. एक डेफिनेशन अभी देता हूं उसको भी, वो मैथमेटिकल है, उसको जब मैथमेटिकली चलूंगा तो आगे दूंगा. देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया सर, और ये मैंने इसको शेड कर दिया. थोड़ा सा जल्दी में शेड कर रहा हूं, थोड़ा बाहर भी चला जाएगा तो आप माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज. अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मैं कोई दो पॉइंट्स मार्क करता हूं. एक पॉइंट ये मार्क कर लिया मैंने P, और एक ये मार्क कर लिया Q. PQ को मिला दिया, लाइन सेगमेंट बना. क्या ये लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल के बाहर कहीं जा रहा है? नहीं. क्या कोई ऐसे दो पॉइंट्स आप ढूंढ सकते हैं जिनको ज्वाइन करने पे इस ट्रायंगल के बाहर चला जाए? नहीं सर, ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं. आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, जो भी दो पॉइंट्स, अगर आप वो ट्रायंगल के बाउंड्रीज पे ले रहे हैं या अंदर ले रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट्स अगर लेंगे तो उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इसके अंदर ही लाई करेगा. कॉन्वेक्स सेट है. ठीक है, कॉन्वेक्स सेट है जी. एक और देखते हैं. ये सर्कल बना लिया मैंने, दिस इज सर्कल. ठीक है, इसका इंटरनल रीजन शेड कर रहा हूं मैं, इंटरनल, अंदर वाला. अभी जब मैं ग्राफिकल अप्रोच पे जाऊंगा तो आपको इक्वेशन से समझाऊंगा, तब इक्वेशंस की बात मैं करूंगा उस समय. ठीक है जी. तो देखिए, अब इस पे कोई दो पॉइंट्स ले लें हम लोग. सपोज आई टेक वन पॉइंट हियर, आई टेक वन पॉइंट हियर, आई जॉइन देम. डज इट गो आउटसाइड द सेट? नो, इट डजंट. कैन यू फाइंड एनी टू पॉइंट्स ऑन जॉइनिंग हुज लाइन could venture outside the set? No sir, it's not possible. आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, अगर आपने दो पॉइंट्स इस सेट पे लिए हैं, सेट के ऊपर लिए हैं या सेट के अंदर लिए हैं, उनको ज्वाइन करेंगे, पूरी तरह से उसकी जो लाइन है वो सेट के अंदर लाई करेगी. सो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्वेक्स सेट. तो सर फिर नॉन कॉन्वेक्स कब कहेंगे सेट को हम? अगर बाहर जा सकती है तो. देखिए, बाहर ले जाते हैं जी. देखो, मैं एक आपको सामने एक फिगर बनाता हूं. देखिए, दिस इज द फिगर, और इसको मैं शेड करता हूं. यहाँ पे शेड कर दिया इसको मैंने यहाँ पे. देखिए, नाउ डू यू फाइंड, कैन यू फाइंड एनी टू पॉइंट्स? सर यहाँ तो कतार लगी हुई है, देख रहे हैं? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये बाहर चलेगी सेट के. सो व्हेन आई कैन फाइंड अ सिंगल लाइन, अगर एक भी फाइंड कर सकते हैं, इफ यू कैन फाइंड अ सिंगल लाइन सेफली, यू कैन से इट इज नॉट ए कॉन्वेक्स सेट, इट इज अ नॉन कॉन्वेक्स सेट. ठीक है, देखिए ये देखिए, इज इट ए कॉन्वेक्स सेट? नो, आई एम शेडिंग द इंटरनल रीजन. ये रीजन शेड किया मैंने. इज इट ए कॉन्वेक्स सेट? नो, बिकॉज इफ यू जॉइन दीज टू पॉइंट्स, line is going outside the set. Okay, so the concept is clear. If we take any two points which are lying either inside the set or on the set and we join them by a line segment, and if the line segment would lie entirely within the set, always, only then it is a convex set. If there is a single line segment which can go outside for even for a very small time, then it is non-convex set. ठीक है जी. अगर एक भी आप ढूंढ सकते हैं, इफ यू कैन फाइंड वन ना, देन देयर आर इनॉर्मस लाइन सेगमेंट्स. एक अकेली नहीं होती, बहुत सारी होंगी. ठीक है, मगर खैर वो हमारा इशू नहीं है. हम अगर एक ढूंढ सकते हैं सफिशिएंट है. तो क्वेश्चन क्या था जो बच्चे ने पूछा मुझसे? क्या सर मैं एक लाइन ढूंढ दूं जो अंदर लाई करती है तो कॉन्वेक्स सेट हो गया? नहीं. हम अगर कोई एक ऐसी लाइन नहीं ढूंढ सकते जो बाहर जाती है तो कॉन्वेक्स हो गया. इफ यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल लाइन, जैसे ट्राइंगल में था, I cannot find a single line which can go outside the set, convex set. Here, if I cannot find a single line which can go outside a set, the circle is convex set. But यहाँ पे मेरे को एक लाइन मिल रही है, एक मिल गई काफी है. ठीक है, तो ये है सिचुएशन जी, ये कंसेप्ट हो गया. अब ग्राफिकली ऑब्वियसली पहले ग्राफ बनाना होगा, रीजन शेड करना होगा, और फिर उसको करेंगे सॉल्व. जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था, अब मैं ग्राफिकल अप्रोच पे ही चलता हूं. जैसे क्वेश्चन है मेरे सामने, S such that S is equal to xy such that 2x plus 3y is less than 6. तो देखिए जी, मैं यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ पहले. दिस इज 1 2 3 1 2 3. So when x is 0, y is 3. So I am here. And when y is 0, when x is 0, y is 2. I'm here. And when y is 0, x is 3. So I'm here. So I have to
take a line segment which would join these 2 points. अब मुझे वो रीजन चाहिए जिसको ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करती है, ये लेस देन इनइक्वालिटी है, तो लेस देन के लिए क्या करते हैं हम लोग, बेसिक काम क्या है, ओरिजिन ढूंढ लीजिए, ओरिजिन है 0 0, ठीक है, 0 0 पे आए, यहाँ डाल के चेक करते हैं, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 6, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो हमने x की जगह डाला 0, y की जगह डाला 0, अगर ट्रू आ गया तो वो रीजन शेड करेंगे जहां पर ओरिजिन लाई करता है, फॉल्स आ गया तो वो रीजन शेड करेंगे जहां ओरिजिन नहीं लाई करता है, ट्रू आ गया तो ये रीजन में शेड कर देता हूं। ये ओपन सेट है बेसिकली। तो अब क्या इसमें कैन यू फाइंड एनी 2 पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पे लाइन सेट से बाहर जाए? नहीं जी, ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है। आप एक पॉइंट यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, लाइन वुड लाई, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ लीजिए, लाइन वुड लाई विद इन द सेट। थोड़ा सा हिल रहा, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग, सिंस all the lines joining any 2 points of this set lie entirely within the set, so it is a convex set। बच्चे के सर आप कह रहे थे आप algebraically भी प्रूव करोगे? जी हाँ करेंगे, लेकिन पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन पे जाऊंगा, फिर अभी पहला पार्ट जो ग्राफिकल है, फिर मैथमेटिकली भी करेंगे, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है जी। और देखते हैं, s is equal to xy such that 2x square plus 3y square is less than equal to, यहाँ पे कर ले हम क्या, 36 कर लें, ठीक है जी, चलिए 36 कर लेते हैं। तो सर ये एक बनेगा आपके सामने, इलिप्स बनेगा। तो अब देखिए व्हेन x is 0, y would be, y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 12, y हो जाएगा √12, एंड y 0, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 18, x हो जाएगा √18, x है √18 प्लस माइनस, y है √12 जो भी प्लस माइनस, तो कुछ इस तरह की शेप हमारे सामने बनती हुई आ रही है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये इलिप्स है, और अब मुझे शेड कहाँ करना है, वापस डालिए 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 36, ट्रू आ गया तो वो रीजन जहाँ पे ओरिजिन लाई करता है, यानी इंटरनल रीजन शेड करना है। इज इट अ कॉन्वेक्स सेट? यस इट इज अ कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि ऑब्वियस बात है सर, आप कोई भी 2 पॉइंट्स अगर इसमें लेंगे along the length breadth कोई भी ले लीजिए, उनको ज्वाइन करने पर the line would lie entirely within set। हमारा एक्सप्लेनेशन वही है, since all the line segments joining any 2 points of the set lie entirely within the set, so it is a convex set। ये बेसिक सा काम है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन होता तो क्या होता, अगर ये ऐसा होता, सपोज सर्कल लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये एक सर्कल बन रहा है, रेडियस उसकी 3 है, ये बन गया सर्कल। अब क्योंकि ग्रेटर देन है आप डालेंगे 0 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 9, फॉल्स हो गया तो बाहर का रीजन शेड करना है, ठीक है जी। बचपन में बनाते रहे ऐसा कुछ, चंदा नहीं सूरज बनाते रहे ड्राइंग, हाँ जी। क्या ये कॉन्वेक्स सेट है सर? क्या लगता है क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? एक पॉइंट में यहाँ लेता हूँ P, एक यहाँ लेता हूँ Q, P और Q को ज्वाइन करता हूँ, डज इट लाई एंटायरली विद इन द सेट? नो, ये देखिए यहाँ पे सेट से बाहर जा रहा है, सेट से बाहर, क्योंकि सेट हमारा क्या है, सर्कल के बाहर का रीजन सेट है, तो द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल आर आउटसाइड द सेट, पॉइंट्स which are inside the circle they are outside the set, so the line segment is venturing outside the set, so it is a non-convex set, it is a non-convex set, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? एक और देखते हैं एग्जांपल, देखिए x into y is less than equal to say 4, right? This represents a rectangular hyperbola, x y दोनों पॉजिटिव हैं, it represents a rectangular hyperbola, so x into y less than 4, if I take 0 0, 0 into 0 0, 0 less than 4, तो true आ रहा है, तो I have to shade below this curve, and because x and y are positive, so I have to stay in the first quadrant। Can you take any 2 points which are lying, जिनको ज्वाइन करने पे लाइन बाहर चली जाए? हाँ जी बिल्कुल है, देखिए एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं, I took 1 point P, 1 point Q, I joined them, the line has gone outside the set, so this is an example of a non-convex set। क्लियर? ठीक है जी। सर लाइन की बात हो रही है तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कुछ जिगजैग नहीं करना है आपको, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफिकली इंपॉर्टेंट क्या है सर? ग्राफिकल मेथड में भी इंपॉर्टेंट क्या है? आपको कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। कोई बच्चे बोलेगा सर
कर्व स्केचिंग नहीं आती है, यही वीक पॉइंट है। तो सर पहले बहुत सारे वीडियोस है कर्व स्केचिंग पे हमारे कोर्स में, ठीक है। तो पहले कर्व स्केचिंग को तसल्ली से पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आया तो डाउट सेशन में लेता हूँ, उसमें आइए डिस्कस कीजिए मेरे साथ, ठीक है। जिन जिन क्वेश्चंस के, जिन जिन इक्वेशंस के कर्व्स आपसे नहीं बन पाते हैं, देखिए मैं अक्सर क्लास में बोलता हूँ बच्चों को, मैथ्स में अगर आपको हम मैथ्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास में, तो उसका जो प्राइमरी रीजन है वो कर्व स्केचिंग है। फंक्शन देखा और उसके कर्व दिमाग में, जैसे स्विच दबाया और लाइट का बटन जल जाता है, वैसा होना चाहिए। फंक्शन देखा, उसकी कर्व दिमाग में आ गई, अरे ऐसी बनती। फिर थोड़ी ऑब्वियसली देयर आर सम निटिग्रिटीज के, उसका पॉइंट एक्स एक्सिस पे कहाँ होगा, वाई पे कहाँ होगा, वो सब तो अलग बात है, लेकिन एक जो बेसिक शेप है वो हमारे ब्रेन में बन जानी चाहिए उसको देखते ही। अगर वो बन सकती है तो ठीक है, नहीं बन सकती तो सर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। तो कर्व स्केचिंग आपको आती है, मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने बोल दिया नहीं आती तो पहले आपको उसके वीडियोस देखने पड़ेंगे, उससे पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कंसेप्ट क्या है कि आपको 2 पॉइंट लेने हैं, ऐसे 2 पॉइंट ढूंढने जिनको ज्वाइन करने पे लाइन सेट से बाहर जाती हो। और अगर आप ऐसे पॉइंट्स नहीं ढूंढ सकते तो कॉन्वेक्स सेट है, ढूंढ सकते हो तो नॉन कॉन्वेक्स सेट है। सिंपल सर, राइट, कोई इश्यू तो नहीं है, ओके। अब मैं आपको मैथमेटिकली चीजों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अक्सर बच्चे थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उस पर चलता हूं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन पहले लिखता हूं, क्या कहता हूं जी, देखिए, अ सेट इज said to be a convex set if a convex combination of its any 2 points belong to the set। एक सेट तब कॉन्वेक्स सेट होता है अगर उसके किन्हीं 2 पॉइंट्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेट को बिलोंग करता है, तो वरना वो जो है सेट कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है। अब बच्चे कहेंगे सर ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या भला है, व्हाट इज दिस, अभी बताते हैं सर। वैसे इसके ऊपर एक अलग लेक्चर है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। मैं को एक तरह से और डिफाइन करना है, और मैं ऐसा कह सकता हूँ, सेट S is said to be convex if and only if u1 u2 belongs to S, 1 minus theta u1 plus theta u2 also belongs to S for all theta belongs to 0 to 1। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने जो लिखी है डेफिनेशन, इसका मतलब हमें समझना है, और इसका रिलेशन इस कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के साथ भी है। यहाँ पे जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लिखा है, इसका रिलेशन आपस में दोनों का। देखिए, पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। हम लीनियर कॉम्बिनेशन समझते हैं, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि ax plus by where a and b are constants, ठीक है, तो this is something which is called linear combination of x and y, right? But if the values of a and b are such that a plus b is always equal to 1 and both a b are greater than 0, यानी ए और बी ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनका सम 1 आ जाए और ये दोनों हमेशा 0 से बड़े होंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं कि हम कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो आप कहेंगे सर 1 से बड़े भी हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अगर 1 से बड़े हो गए तो सम 1 नहीं आएगा। जैसे देखिए, हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ वाई, ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। 1/3 ऑफ एक्स प्लस 2/3 ऑफ वाई, ये भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। 1/4 ऑफ एक्स प्लस 3/4 ऑफ वाई, ये भी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो हमने जो बात की थी यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन की, बाकी डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर। अभी मैंने आपको वर्किंग नॉलेज दी है कि क्या होता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 माइनस थीटा एंड थीटा, जो u1 u2 के कोफिशिएंट्स हैं,
आप देखिए दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि थीटा लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में। थीटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इन दोनों का सम हमेशा क्या आ रहा है, 1 माइनस थीटा और थीटा का सम करेंगे, थीटा थीटा कैंसिल, सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, सम इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1, और ये दोनों हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, जो ऊपर लिखा था मैंने डेफिनेशन में, दैट कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2 शुड आल्सो बिलोंग टू सेट। यही लिखा है ऊपर मैंने यहाँ पर, a set is said to be convex if a convex combination of any two points belong to the set। तो अगर दो पॉइंट ले लिए u1 u2 और उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी सेट को बिलोंग करता है तो ये कॉन्वेक्स सेट है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों का कि सर ये तो एक नई बात हमारे सामने आ गई, हमने तो पहले कभी ऐसी कोई चीज पढ़ी नहीं हुई। मैं कहूँगा हाँ आपने पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा हुआ है, 2-3 जगह इसकी आपको मिसाल मिलती है, एग्जाम्पल्स 2-3 जगह मिलते हैं। जैसे आप स्कूल में स्टैट्स पढ़ते थे और वहाँ पे आपने सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, आपने वेटेड मीन पढ़ा था। तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग वेटेड मीन ऑफ u1 एंड u2। छोड़िए उसको भी पढ़ा था, लेकिन चलिए वहाँ पे सर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वेटेड मीन को ध्यान से पढ़ाता नहीं है, बस एक फॉर्मूला पढ़ा छोड़ दिया। लेकिन एक कंसेप्ट है जो आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ है और उसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। याद करते हैं सेक्शन फॉर्मूला को। देखिए मेरे पास एक पॉइंट है u1 और एक पॉइंट है u2, ठीक है जी, u1 और एक पॉइंट है u2। मुझे एक्चुअली करना क्या है, जो मैंने ग्राफिकल डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे अभी और ये जो अब मैथमेटिकल पढ़ रहा हूँ, दोनों को रिलेट करना है, ताकि वो जो मैंने वहां पढ़ा कि अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स लाई एंटायरली विद इन द सेट, उसको उसका इस डेफिनेशन से क्या रिलेशन है वो समझना है। इसलिए मैं थोड़ी सी मशक्कत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ी मेहनत जो कर रहा हूँ, वरना कह सकता हूँ ऐसा ही होता है याद कर लो। नहीं, याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है, समझना है। तो आइए समझते हैं। तो एक पॉइंट है u1 के कोऑर्डिनेट्स हैं सर x1 y1, एक पॉइंट है u2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर आप कोई पॉइंट बीच में ले लेते हैं, सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं आप बीच में, उसको कह देता हूं मैं z, जो कि इसको u1 u2 को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड करते हैं द रेशियो m/n। z के कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो आपको याद होगा सेक्शन फॉर्मूला से कैसे निकालते थे आप निकालते थे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और y निकालते थे y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। याद है? हाँ सर ये याद है। इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है, एक्सटर्नल की नहीं हो रही, क्योंकि हम जो बात करने वाले हैं हमें वो लाइन सेगमेंट चाहिए जो उन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। सो आई वांट टू गो इनसाइड these two points inside u1 and u2। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल में माइनस साइन आ जाया करता था, एक्सटर्नल को छोड़ दिया, उसकी जरूरत नहीं हमारे को। और आगे चलते हैं सर, देखिए x इज इक्वल टू m बाय m प्लस n x2 प्लस n बाय m प्लस n x1 एंड y इज इक्वल टू m बाय m प्लस n y2 प्लस n बाय m प्लस n y1। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो थीटा था ना बेटे, ये थीटा एक पैरामीटर है, थीटा एक पैरामीटर है। तो हम यहाँ पे किसी को इसका कुछ भी नाम ले सकते हैं, थीटा, लैम्डा, गामा, डीटा, अल्फा, बीटा, टी, अलग किताबों में अलग नाम पढ़ेंगे, मैं थीटा लेके चल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस m बाय m प्लस n को हम मान लेते हैं थीटा। लेट m बाय m प्लस n इज थीटा, इसको थीटा मान लिया। तो अगर मैं 1 माइनस थीटा निकालता हूँ तो क्या होगा, 1 माइनस थीटा होगा 1 माइनस m बाय m प्लस n, यानी 1 माइनस थीटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, n बाय m प्लस n। तो अगर इसको आपने थीटा माना है तो अपने आप ये क्या बन गया, 1 माइनस थीटा। तो यानी x क्या आ गया, x आ गया आपके पास थीटा x2 प्लस 1 माइनस थीटा x1, और y आ गया आपके पास थीटा y2 प्लस 1 माइनस थीटा y1। यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 माइनस थीटा x1 प्लस थीटा x2, 1 माइनस थीटा y1 प्लस थीटा y2, ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, राइट। और ये कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं बेसिकली क्या दे रहे हैं आपको, ये दे रहे हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। देख पा रहे हैं ना, मैंने बताया अभी कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। x1 x2 के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम 1 आ रहा है, ठीक है, और
ये जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं रेशियो इंटरनल है, अगर रेशियो इंटरनल है तो ये m और n दोनों पॉजिटिव होंगे, और अगर m और n दोनों पॉजिटिव होंगे ग्रेटर देन 0 हैं, m और n दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, थीटा भी मोर देन 0 है, 1 माइनस थीटा भी मोर देन 0 है, और क्योंकि इनका सम 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली 1 से बड़े नहीं है। ठीक है, यानी हमारी जो डेफिनेशन की कंडीशन है पूरी हो जाती है। यहां पर जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम 1 आ रहा है और वो दोनों कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, यानी कि ये हो गया क्या हमारे पास, दिस इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। मैं आगे इस तरह से और लिख सकता हूं, इसको ऐसे कह सकता हूं, देखो 1 माइनस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं, x1 y1 प्लस थीटा x2 y2, अब ये क्या है, ये u1 है, यानी 1 माइनस थीटा u1 प्लस थीटा u2, तो दिस इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो सेक्शन फॉर्मूला से मिलता है वो क्या है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन मिलता है हमको। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, रिलेट करने के लिए था। अब मैं अपनी इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को और जो ग्राफ में पढ़ा उन दोनों को मिक्स करना चाहता हूं, उन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूं, थोड़ा पीछे लेके चलता हूं आपको। ग्राफिकल डेफिनेशन में क्या बताया था, अ सेट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट इफ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स वुड लाई एंटायरली विद इन द सेट। और वो लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स क्या है, वो ये रही सर, हमने प्रूव कर दिया उनको। अगर जो लाइन जॉइनिंग के बीच के कोई भी पॉइंट्स लेने, आपने यहाँ पे क्या निकाला है, उनके बीच के कोई भी दो पॉइंट्स, m और n तो कुछ भी हो सकते हैं, m और n तो कुछ भी हो सकते हैं, 1:10 ले लो, 1:100 ले लो, 1:1 लाख ले लो, 1:1 मिलियन, 1:1 बिलियन, कुछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो u1 और u2 के बीच के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ऐसे 1 मिलियन/1 भी ले सकते हैं, u1 u2 के बीच के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इससे, इस इक्वेशन से। तो यानी ग्राफिकल डेफिनेशन में पढ़ा था क्या, अ सेट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स लाई एंटायरली विद इन द सेट। और यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, सेट इज कॉन्वेक्स अगर ये जो लाइन सेगमेंट है, ये देखिए लाइन सेगमेंट है, मैं सब क्लीन करता हूं यहां पे, फिर दोबारा इसको लिखूंगा। सेट इज सेड टू बी कॉन्वेक्स इफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेट टू पॉइंट्स लाई बिलोंग्स टू, मतलब लाई विद इन द सेट। ठीक है, तो यही करना है मैथमेटिकल डेफिनेशन में, यही प्रूफ करना है कि अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें और उन दो पॉइंट्स का एक कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बना दें और ये साबित कर दें कि वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी S को बिलोंग करता है, तो होगी बात खत्म, ये कॉन्वेक्स सेट है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी, क्वेश्चंस पे चलूंगा, पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में आपको, मैथमेटिकल बात चल रही है, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स सेट, पहली बात यह है सर कि नल सेट इज कॉन्वेक्स सेट, नल सेट इज कॉन्वेक्स सेट। नल सेट क्या होता है, जिसमें कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग को नथिंग से मिलाया तो क्या मिला, नथिंग। ठीक है, नल सेट इज समथिंग, अ सेट विच हैज नथिंग इन इट, नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट इवन जीरो, इट हैज नथिंग। So one point is nothing, other point is nothing, nothing with nothing is nothing. कौन सा बन गया, कुछ एक राइम बन गई ना कुछ, nothing with nothing is nothing, वाह क्या बात है। नहीं, मैं पोएम नहीं बना रहा था लेकिन बन गई, क्या करूं। तो नल सेट इज कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम इफ वी कंसिडर द एंटायर यूनिवर्स, अगर पूरे यूनिवर्स को ले लें, तो अगर आपने पूरा यूनिवर्स ले लिया तो उससे बाहर तो जा ही नहीं सकते, उससे बाहर जा ही नहीं सकते, तो उसके कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे यूनिवर्स के अंदर ही लाई करेंगे, तो वो भी क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। सो द एंटायर यूनिवर्स इज अ कॉन्वेक्स सेट। तो नल सेट भी कॉन्वेक्स है, जहां कुछ नहीं है वो भी कॉन्वेक्स है, और जहां सब कुछ है वो भी कॉन्वेक्स है। ठीक है, वैसे अगर आपको बात बोलूं, ये जो दो बातें जो मैंने बोली है ना, ये बड़ी आध्यात्मिक है। ठीक है, तो जो प्रवचन वगैरह देते हैं यही दो बातें सिखा रहे होते हैं, जहां कुछ नहीं और जहां सब कुछ यही सिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए इतने पे रुकना काफी। तो जहां कुछ नहीं है, विच हैज नथिंग, नल सेट, इट इज कॉन्वेक्स सेट। द सेट विच इज अ यूनिवर्सल सेट, इट इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। देन एक और बात है कि अगर दो कॉन्वेक्स सेट्स हैं और आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी कॉन्वेक्स सेट ही होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट। Intersection of two convex sets is also a convex set.
जैसे लेट ए एंड बी, मैं अभी एस से डिनोट कर रहा था ना, एस कर लेते हैं, ऊपर एस किया था, तो लेट एस एंड टी आर convex sets, then S intersection T is also a convex set. बड़ी सिंपल सी बात है सर, देखिए अगर दो लाइंस S को बिलोंग करती हैं, दो पॉइंट S को बिलोंग करते हैं, उनका लाइन सेगमेंट S को बिलोंग करता है, तो S कॉन्वेक्स है। दो पॉइंट T को बिलोंग करते हैं, तो उनका लाइन सेगमेंट T को बिलोंग करता है, T कॉन्वेक्स सेट है। तो S एंड T में कौन से पॉइंट्स होंगे? वो जो S में भी हैं और T में भी हैं, तो उसमें कोई दो पॉइंट लेंगे तो S को भी बिलोंग करते होंगे और सर्टेनली T को भी करते होंगे, यानी S एंड T को करते हैं, कॉन्वेक्स सेट है। सिंपल सी बात है, कुछ ऐसा नहीं है। चौथी बात यह है सर कि यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स इज नॉट नेसेसरली अ कॉन्वेक्स सेट। दो सेट्स का यूनियन जो है वो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता है। हो सकता है, नॉट नेसेसरीली मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है यूनियन हो, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। मैं इसके लिए कुछ आपके सामने ग्राफ प्रस्तुत करता हूँ। देखिए, एक ये सेट है मेरे पास रेक्टेंगल, एक है सेट है ट्रायंगल। इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन दीज टू? नहीं, अलग अलग है, कुछ कॉमन नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? एस इंटरसेक्शन टी इज नल सेट, एंड मैंने क्या बताया? नल सेट इज कॉन्वेक्स सेट। एस कॉन्वेक्स सेट है, टी कॉन्वेक्स सेट है, इनका इंटरसेक्शन नल सेट है, नल सेट इज कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट है। एक और एग्जांपल देखिए, ये है हमारे पास रेक्टेंगल और ये है हमारे पास ट्रायंगल। अब व्हाट इज एस इंटरसेक्शन टी? दिस इज एस इंटरसेक्शन टी, द स्मॉलर ट्रायंगल। एस इज कॉन्वेक्स, यस एस इज कॉन्वेक्स। टी इज कॉन्वेक्स, यस टी इज कॉन्वेक्स। सो दिस इज एस एंड टी। इज इट कॉन्वेक्स? यस। ठीक है जी, बिकॉज इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट वुड लाई एंटायरली विद इन द सेट। तो अब ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं, कोई भी दो सेट्स आप ले सकते हैं। यूनियन की बात करते हैं, क्या दो सेट्स का यूनियन भी कॉन्वेक्स सेट होता है? मैंने कहा हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे इसी में बात करूँ, जो एग्जाम्पल आपके सामने है, इसमें एस एंड टी का यूनियन क्या है? द यूनियन ऑफ एस एंड टी इज दिस सेट, दिस इज द यूनियन ऑफ एस एंड टी। इज इट कॉन्वेक्स? नो, नहीं सर, ये कॉन्वेक्स नहीं है। देखिए, if I take these 2 points, the line would venture outside the set P Q। मैंने P पॉइंट यहाँ लिया, Q यहाँ लिया, लाइन सेगमेंट सेट से बाहर जा रही है, तो इट इज नॉट कॉन्वेक्स। तो यूनियन कॉन्वेक्स हो सकता है। आप कहेंगे सर कब होगा? ये देखिए, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, तो वो भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, तो यूनियन भी इनका कॉन्वेक्स ही है, क्योंकि यूनियन इनका क्या होगा? रेक्टेंगल इटसेल्फ होगा, तो वो कॉन्वेक्स है। खैर, ये आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि कुछ बच्चे जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं एमसीक्यू वगैरह टेस्ट में, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। वैसे ये एक बहुत ही इसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मैं मानता हूँ इस बात को। यूनियन का जो कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी उस डोमेन में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा अभी उस जाने का कोई काम नहीं है। मैं अभी जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसमें इतना ही मेरे लिए बताना सफिशिएंट है। अगर हम और आगे जब नेक्स्ट लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हम प्रूव, कब यूनियन कॉन्वेक्स सेट होगा और कब नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस आपको इतना याद रखना है, 4 प्रॉपर्टीज को, ठीक है। मैंने उनका आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है क्यों ऐसा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस क्लास का, उसमें मैं पहुंच गया हूं, और वो है मैथमेटिकली प्रूव करना कि कोई सेट कॉन्वेक्स सेट है या नहीं है। और यहीं पे बच्चे जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या में नजर आते हैं, मेरे को बहुत बड़ी उलझन में नजर आते हैं। इसको प्रूव करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है s इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 प्रूव दैट s इज अ कॉन्वेक्स सेट विदाउट यूजिंग ग्राफ। ग्राफ के बिना प्रूफ करना। ग्राफिकली बोलता तो फिर तो आसान था, मैंने कर दिया ऊपर आपके लिए क्वेश्चन वाला सॉल्व। आइए जी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेफिनेशन याद है, 2 पॉइंट लेंगे, उनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे और ये प्रूफ कर देंगे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन S को बिलोंग करता है। तो लेट u1 इज इक्वल टू x1 y1
and u2 is equal to x2 y2. Also let u1 u2 belongs to s. हमने मान लिया u1 u2 दोनों s को बिलोंग करते हैं. बिलोंग करते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 2x1 plus 3y1 less than equal to 6 and 2x2 plus 3y2 less than equal to 6. ठीक है. अब मुझको इनका बनाना है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन. तो उसके लिए मैं क्या लेता हूँ, मैं कहता हूँ लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1. एक बात मैं बोलना भूल गया था वहाँ पर ऊपर, बोल देता हूँ अभी, कि अगर ये थीटा जो है यहाँ पर इस डेफिनेशन में, अगर मैं थीटा ले लेता हूँ 0, इफ आई टेक थीटा 0 देन आई एम एट पॉइंट u1, और अगर थीटा ले लेता हूँ 1 तो आई एम एट पॉइंट u2. ठीक है, ये भी लिया जा सकता है. 0 लूंगा तो u1 पे आ गया और 1 लूंगा तो u2 पे चला गया. ये किया जा सकता है, अदरवाइज इनके बीच में रहना है हमको. तो लेट थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1. सो द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन of u1 and u2 is 1 minus theta u1 plus theta u2, यानी 1 minus theta times x1 y1 plus theta times x2 y2. So this is 1 minus theta x1 plus theta x2 comma 1 minus theta y1 plus theta y2. ठीक है. तो ये बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग x एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग y. अब मुझको ये प्रूव करना है क्या वो उस इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं या नहीं करते हैं. देख लेते हैं. नाउ क्या इनइक्वालिटी थी जी, 2x थी ना. हाँ जी. तो ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस थीटा x1 प्लस थीटा x2 प्लस थ्राइस ऑफ 1 minus theta y1 plus theta y2. This will be twice of 1 minus theta x1, twice of 1 minus theta x1 plus twice of theta x2 plus 3 times 1 minus theta y1 plus 3 times theta y2. So this is 1 minus theta 2x1 plus 3y1 plus theta 2x2 plus 3y2. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन था इसको इस इनइक्वालिटी की फॉर्म में बदल दिया. अब मैं जानता हूँ क्या, सिंस 2x1 plus 3y1 is less than equal to 6, ये हमने ऊपर अभी बताया आपको कि ये 6 से छोटा है क्योंकि वो u1 बिलोंग करता है s को. तो अगर दोनों साइड में 1 माइनस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस थीटा टाइम्स 2x1 प्लस 3y1 is less than equal to 6 times 1 minus theta and 2x2 plus 3y2 less than equal to 6, यानी थीटा टाइम्स 2x2 प्लस 3y2 less than equal to 6 theta. इनको ऐड कर दें. दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2. एडिंग 1 and 2 we get 1 minus theta times 2x1 plus 3y1 plus theta times 2x2 plus 3y2 is less than equal to 6 times 1 minus theta plus 6 theta. और ये किसकी इंटरप्रिटेशन है सर, ये हमने किसको कन्वर्ट किया था, ये हमने वी कन्वर्टेड बेसिकली द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2. ठीक है. तो यानी 1 minus theta u1 plus theta u2 is less than equal to 6. ठीक है. तो what does it mean, ये सेट को बिलोंग करता है. सो therefore 1 minus theta u1 plus theta u2 belongs to s. ये 6 कैसे आ गया, ये थीटा थीटा यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं ब्रैकेट्स खोलने पर. तो अब ठीक है, हो गया कि जब अगर कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेट को बिलोंग करता है मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है. तब लिख देंगे thus since convex combination of u1 and u2 belong to the set so it is a convex set. क्योंकि convex combination set को belong करता है तो ये convex set है. राइट, क्लियर.
ठीक है जी, उम्मीद है समझ गए इतनी बात आप लोग। अब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए आपको, और वो लेते हैं s इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 3x² प्लस 2y² लेस देन इक्वल टू 6। प्रूव दैट इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, वही कहानी जैसे पहले था। तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। पहले क्या लेंगे, पहले लेंगे लेट u1 is equal to x1 y1 and u2 is equal to x2 y2 such that u1 u2 belongs to s, यानी ये आ जाएगा 3u1 square plus 2 3x1 square plus 2 y1 square less than equal to 6 and 3x2 square plus 2 y2 square less than equal to 6, right? ओके, अब मुझे इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है वो सेट को बिलोंग करता है, प्रूव करना है। तो हम लेते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 एंड u2, 1 minus theta u1 is 1 minus theta u1 plus theta u2 for all theta belongs to 0 to 1। तो यानी आ जाएगा 1 minus theta x1 y1 प्लस थीटा, और मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले स्टेप में मैंने पिछले क्वेश्चन में कर दिया था, इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस थीटा x1 प्लस थीटा x2 कॉमा 1 माइनस थीटा y1 प्लस थीटा y2। सो दिस इज x एंड दिस इज y। अब मुझे इनइक्वालिटी क्या प्रूफ करनी है। नाउ इनइक्वालिटी है 3 है ना, ये 2 है, 3x² प्लस 2y², 3x² प्लस 2y² प्रूफ करना है, लेस देन 6 आना चाहिए। ठीक है जी, तो यानी अब हम ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से लेंगे, जो हमने अभी लिया है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ u1 u2। तो 3x की जगह जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन वैल्यू आई थी 1 माइनस थीटा x1 प्लस थीटा x2 का स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस थीटा y1 प्लस थीटा y2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलिए सर, होल स्क्वायर खोलते हैं। 3 टाइम्स, आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो आ जाएगा 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस थीटा होल स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 थीटा 1 माइनस थीटा x1 x2 प्लस बाद वाला खोलेंगे ट्वाइस ऑफ 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस थीटा होल स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2 थीटा 1 माइनस थीटा y1 y2। अब अगर मैं लाइक टर्म्स कलेक्ट करूंगा तो लाइक टर्म्स पहली तो ये वाली हैं, पहली लाइक टर्म्स ये हैं। 1 माइनस थीटा स्क्वायर कॉमन लूंगा यहाँ से, तो क्या आएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3x1 स्क्वायर प्लस 2 y1 स्क्वायर। सेकेंड लाइक टर्म्स ये हैं, यहाँ से थीटा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा प्लस थीटा स्क्वायर 3x2 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर। और थर्ड जो लाइक टर्म्स हैं वो ये हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे हम 2 थीटा 1 माइनस थीटा, तो आई विल हैव 3x1 x2 प्लस 2 y1 y2। अब आप एक बात जानते हैं क्या, कि ये आपने प्रूव करा, अब ऊपर अज्यूम करा कि u1 बिलोंग करता तो ये 6 से छोटा है। सिंस 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6, तो अगर मैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 6 टाइम्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर। ऐसे ही ये भी 3x2 स्क्वायर भी इनइक्वालिटी होल्ड करता है, 3x2 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर इज लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 6, तो थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे थीटा स्क्वायर 3x2 स्क्वायर प्लस 2y2 स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 थीटा स्क्वायर। अब देखिए, अगर जैसे 3x1 स्क्वायर प्लस 2y1 स्क्वायर लेस देन 6 है, 3x2 स्क्वायर 2y2 स्क्वायर लेस देन 6 है, x1 स्क्वायर क्या होता है x1 इंटू x1, x2 स्क्वायर क्या होता है x2 इंटू x2, तो बस मैं x1 की जगह x2 ले रहा हूँ। तो मुझे मिल रहा है क्या 3x1 x2 प्लस 2y1 y2, इसका भी प्रूफ है लेकिन बहुत बड़ा है इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ अभी। ठीक है,
तो दिस इज लेस देन 6, मतलब कि 2 थीटा 1 माइनस थीटा 3x1 x2 प्लस 2y1 y2 इज लेस देन 6 थीटा 1 माइनस थीटा। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एडिंग 1, 2 एंड 3 we get 1 minus theta square 3x1 square plus 2y1 square plus theta square 3x2 square plus 2y2 square plus 2 theta 1 minus theta 3x1 x2 plus 2y1 y2 is less than equal to 6 1 minus theta square plus 6 theta square plus 6 theta 1 minus theta। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक फ्रेम में आ जाए। राइट, अब देखिए, तो ये तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग u1 u2। तो यानी ये तो आ गया 1 माइनस थीटा u1 प्लस थीटा u2 इज लेस देन इक्वल टू, इन राइट साइड में से मैं 6 कॉमन लूँ अगर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और सॉरी ये जो है यहाँ पे क्योंकि 2 है, मैं एक चीज़ मिस्टेक कर गया यहाँ पे जल्दबाजी में, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की जगह 12 आएगा, यहाँ पे 6 की जगह 12 आएगा, क्योंकि जब दिस इज लेस देन 6 और हम 2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 12 आ जाएगा यहाँ पे, मुझे कुछ गलती लग रही थी, तो ये 12 है यहाँ पे। तो 12 मैंने ब्लैक से कर दिया कि आपको ध्यान रहे कि मिस्टेक हो गई थी, 12 कर रहा हूँ उसको। तो अभी रह गया 2 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा, और ये क्या होता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। 1 माइनस थीटा u1 प्लस थीटा u2 लेस देन इक्वल टू 6 टाइम्स 1 माइनस थीटा प्लस थीटा का होल स्क्वायर, थीटा थीटा कैंसिल, यानी 1 माइनस थीटा u1 प्लस थीटा u2 लेस देन इक्वल टू 6। Hence convex combination of u1 u2 belongs to set, hence S is convex set। सिंपल, आसान है। अच्छा, थोड़ा सा ऑब्वियसली कैलकुलेशंस हैं, इसलिए मैंने ए बी की जगह यहाँ पे नंबर ले लिए 3, 2 और 6, और ए बी में लेता तो थोड़ा और मुश्किल होती, तो समझना और मुश्किल होता। आप ए और बी, जहाँ मैंने 3 और 2 लिखा है वहाँ पे आप ए और बी, और जहाँ 6 लिखा है वहाँ कोई और नंबर आर्बिट्री लेकर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब नंबर से तो आपको समझना आसान हो जाएगा उससे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करना है हमारे को, जिसमें मैंने बताया था वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, s इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रूफ कीजिए। 1 मैं 1 लेकर कर रहा हूँ, आप 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, k ले लीजिए, जो चाहे इस धरती पे मौजूद जो नंबर आपको पसंद है पॉजिटिव वो लेकर कर लीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव के लिए फिर थोड़ा सा अप्रोच अलग हो जाएगी। तो ये अब हम लोग करने वाले हैं, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। सेम कहानी है कि u1 इज इक्वल टू x1 y1 एंड u2 इज इक्वल टू x2 y2। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन के लिए थीटा बिलोंग्स टू 0 to 1 लेते हैं, और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा 1 माइनस थीटा u1 प्लस थीटा u2। थोड़ा सा कंजूसी कर रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ स्टेप्स बता चुका हूँ, डायरेक्टली पे वहीं पे पहुँच रहा हूँ सीधा। 1 माइनस थीटा x1 प्लस थीटा x2, 1 माइनस थीटा y1 प्लस थीटा y2। ये सब स्टेप्स मैं ऊपर लिख चुका हूँ, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं, बस आपको एक बार फाइनल स्टेज पे ले आया। अब ये हो गया x और ये हो गया y, हमको x इंटू वाई मोर देन 1 ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं x इंटू वाई निकालता हूँ पहले। x इंटू वाई क्या होगा सर, x इंटू वाई होगा 1 माइनस थीटा x1 प्लस थीटा x2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस थीटा y1 प्लस थीटा y2। तो यानी आ जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर x1 y1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा x1 y2 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा x2 y1 प्लस थीटा स्क्वायर x2 y2। थोड़ी सी यहाँ पे ना होशियारी की ज़रूरत है। होशियारी क्या करनी है, देखिए होशियारी ये करनी है मेरे को कि एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या है कि ये जो 1 माइनस थीटा स्क्वायर इसको मैं करता हूँ 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा x1 y1, और जो लास्ट टर्म है थीटा स्क्वायर उसको पहले लिखता हूँ प्लस थीटा स्क्वायर करता हूँ थीटा इंटू थीटा, और जो इंटू बाद वाला थीटा स्क्वायर करते हैं 1 माइनस थीटा। रुक रहा हूँ यहाँ पे, रुक रहा हूँ। क्या किया देखिए, 1 माइनस थीटा स्क्वायर को कर दिया 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा,
एक्स एंड वाई अपनी जगह पर है, थीटा स्क्वायर को कर दिया थीटा इंटू थीटा, और वो जो थीटा इंटू थीटा था उसको थीटा इंटू 1 माइनस थीटा -1 ऐसा कर लेते हैं। थीटा इंटू 1 माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस थीटा आ गया अंदर। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पे होशियारी कर डाली। क्वेश्चन में ट्रिक है, इसको यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे। फिर प्लस बाकी दो टर्म्स अपनी जगह पर हैं, थीटा इंटू 1 माइनस थीटा x1 y2 प्लस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा x2 y1। तो सर जी अब ये ब्रैकेट्स खोलते हैं, 1 माइनस थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस थीटा इंटू x1 y1, फिर 1 माइनस थीटा इंटू माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा x1 y2। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे किया ये है कि 1 माइनस थीटा को पहले 1 इंटू x1 y1 किया, फिर 1 माइनस थीटा इंटू माइनस थीटा इंटू x1 y1 किया। अब यही काम यहाँ भी करेंगे, थीटा इंटू 1 इंटू x2 y2, तो थीटा x2 y2, फिर थीटा इंटू माइनस 1 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा x2 y2, और बाद की टर्म्स अपनी जगह पर हैं, प्लस थीटा 1 माइनस थीटा x1 y2 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा x2 y1। तो ये क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है आपका 1 माइनस थीटा x1 y1 थीटा x2 y2। ठीक है, दो टर्म्स लिख दी मैंने, और क्या बच गया, एक टर्म ये बच गई, एक ये बच गई, एक ये बच गई, एक ये बच गई। इनमें देख रहे हैं थीटा 1 माइनस थीटा इन चारों में है, कॉमन लेते हैं, और एक काम और करते हैं माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं। तो माइनस थीटा 1 माइनस थीटा लिया कॉमन, तो यहाँ ये नेगेटिव था, ये वाला टर्म x1 y2 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, x2 y2 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, x1 y2 पॉजिटिव था, नेगेटिव हो जाएगा, और x2 y1 पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x2 y1 माइनस नहीं भी लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिर इन दोनों को जो पहले उनको बाद में लिखना पड़ता है, ऐसा ना करना पड़े, इसलिए मैंने माइनस एन कॉमन ले लिया। 1 माइनस थीटा x1 y1 प्लस थीटा x2 y2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा। अब देखिए इन दोनों में से x1 कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पे, आई हैव y2, कुछ मिस्टेक करिए सर, ये थीटा 1 में थीटा x1 y1 है, ये y2 लिख दिया गलती से, ये y1 है, ये x1 y1 वाली टर्म थी, y1 है, मेरे को लगा कुछ गलती हो रही है। तो x1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा y1 माइनस y2, और इन दोनों में से माइनस x2, बाकी वाले जो दो बचे इन दोनों में से माइनस x2 कॉमन लेते हैं, तो आई हैव y1 माइनस y2। तो यानी मेरे पास फाइनली क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है सर 1 माइनस थीटा x1 y1 प्लस थीटा x2 y2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 आ गया जी। अब देखिए, अब बताना आपको ये है मुझे कि क्योंकि x1 y1 सिंस x1 y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यानी 1 माइनस थीटा x1 y1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस थीटा। ठीक है, सिंस x2 y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी थीटा x2 y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। और ये जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म ये पॉजिटिव है, ये लास्ट टर्म पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है बताता हूं, लिख देता हूं पहले फिर बताता हूं। एंड थीटा, अरे ये क्या, कौन सा मैंने फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, एंड थीटा 1 माइनस थीटा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इज नेगेटिव। आप बोले सर पॉजिटिव है, सर ये पूरी टर्म पॉजिटिव, बाहर माइनस साइन भी है तो मिलाकर पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव है, तो यानी नेगेटिव ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इज पॉजिटिव। अब बच्चे पूछेंगे सर पॉजिटिव क्यों है, आइए बताते हैं। देखिए ये मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहे हैं, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। और आप जानते हैं x, क्योंकि मैं लाइन पर हूँ ना, ऑन द कर्व हूँ, मैंने जो पॉइंट लिया ऑन द कर्व लिए, x इंटू वाई यहाँ पर इज इक्वल टू 1 है। तो अगर x1, ध्यान दीजिएगा, अगर x1 y1 से बड़ा है,
मैंने जो पॉइंट लिया यहाँ पर x1 y1 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो x2 होगा ये छोटा होगा। अगर x बड़ा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे x बड़ा है y से, तो उस पॉइंट पर x छोटा हो जाएगा y से, तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 हो पाएगा, वरना 1 होगा नहीं। तो अगर x1 y1 से बड़ा है तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, x2 लेस देन y2, और वाइस वर्सा। अगर x1 y1 से छोटा है तो फिर x2 y2 से बड़ा होगा। अदरवाइज आप ऐसा कह सकते हैं कि x1 अगर छोटा है y1 से तो x2 बड़ा होगा y2 से। यानी अगर x1 बड़ा है, जैसे मैं अगर फर्स्ट की बात करूं, अगर x1 बड़ा है तो x1 माइनस x2 पॉजिटिव आएगा, तो y1 माइनस y2 नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि x1 बड़ा है तो y1 छोटा है। उल्टा कह लो, अगर x1 छोटा है तो x1 माइनस x2 नेगेटिव आएगा, तो y1 माइनस y2 पॉजिटिव आएगा। तो यानी इनमें से ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनमें से एक ब्रैकेट पॉजिटिव होगा और एक ब्रैकेट नेगेटिव होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगी सर्टेनली, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये नंबर 1 है। नंबर 2, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ, एडिंग 1 and 2, 1 माइनस थीटा x1 y1 प्लस थीटा x2 y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस थीटा प्लस थीटा, यानी 1 माइनस थीटा x1 y1 प्लस थीटा x2 y2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन था उसमें एक टर्म एक्स्ट्रा है, ये वाली, ये टर्म एक्स्ट्रा है उसमें, और ये टर्म पॉजिटिव है। इन दोनों का सम 1 से बड़ा है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का जो सम है 1 से बड़ा है, और मैं अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करूंगा तो और बड़ा ही तो होगा, नेगेटिव थोड़ा ऐड नहीं करना, चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव क्यों ना ऐड करूं, कितना भी छोटा, 0.000000001, इतना छोटा ऐड कर दो तो भी बड़ा ही होगा, छोटा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस थीटा x1 y1 प्लस थीटा x2 y2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 इज ऑल्सो मोर देन इक्वल टू 1। और ये क्या था, ये तो हमने बनाया था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन से, यानी 1 माइनस थीटा u1 प्लस थीटा u2 इज मोर देन इक्वल टू 1। कथा समाप्त। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, so convex combination of u1 u2 belongs to set, hence it is a convex set। सर ये थोड़ा सा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं पहली बार है तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन, सॉल्यूशन को नोट डाउन करो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, इसकी आसान हो जाएगा। हाँ, स्टेप्स हैं। अब देखो, मैंने इसलिए 1 लिया कि और बड़ा नंबर लेता तो क्या होता, और उलझने चलती दिमाग के अंदर। आप 1 को 2 लेके, फिर 3 लेके, फिर 4 लेके, k लेकर, m लेकर, ऐसे करके जब 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में आ जाएगा। और लगे कोई इशू आ रहा है आपको तो सर मैं हाजिर हूँ आपके क्वेरीज को आंसर करने के लिए, पूछेगा मुझसे। ठीक है, तो ये टॉपिक था बेटे कॉन्वेक्स सेट का। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिखा सकूं कॉन्वेक्स सेट किसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, अलजेब्रिकली कैसे प्रूव करना है, ये सब सिखाने की इस वीडियो में कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई इशू नजर आए, अगर आपको नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।